Assalamu alaikum, dear students. Good morning, everyone. Many of you had asked me about the question paper pattern and the distribution of syllabus. So, today in this class, we'll be discussing about the main syllabus for the examination and the syllabus which has been also removed from the examination point of view. Okay, so here there are two model papers at end of your textbook. You people can go through that for exactly knowing what sort of question paper you will be getting. Fine. So there are total 35 questions, children. How many questions? Total 35 questions will be there. Okay. From entire your textbook. Okay. First we will see which syllabus is there for the examination. Okay, here you can see in the first slide all the syllabus has been mentioned. The syllabus which is written in white format, that is there for the examination, and the syllabus which is mentioned in the red format, that is removed from the syllabus. Okay, Romeo Juliet is there, Two Dear, On Children, A Sunny Morning, When You Are Old, The Gardener, Heaven If You Are Not on Earth, Japan and Brazil Through a Traveler's Eye, The Water Where There Is a Wheel. These all are there. You have to study all these. There are only 4 content which has been removed. That is everything I need to know I learned in the forest. To the foot from the child. I believe that books will never disappear, and water. Following, my dear children? Yes. Move to the next slide. These are only the lessons to be read. Fine. You people can also take a screenshot of it. Yes. Design of question paper, how it will be. It will be like there are 3 levels of response. Easy, that will come for 39 marks. Moderate, that will be for 45 marks. And challenging will be 16 marks. Easy means 1 marks. Easily you people can answer. Moderate means it also includes the grammar section. Challenging means little lengthy questions that you have to attempt. Easily, if you go through all this, there are many chances of getting your exam cleared in a flying colors. Okay, come to the next one. Yes, the first question is, how is the design of a question paper? Right, here we shall be discussing from question number 1 to question number 12. टोटल मार्क्स 1 ईच. हर एक क्वेश्चन के साथ सिर्फ 1 मार्क्स लगेगा. कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चंस हैं? टोटल 12 क्वेश्चंस, मतलब टोटल 12 मार्क्स. आंसर द फॉलोइंग इन अ फ्रेज और अ सेंटेंस ईच. यहाँ क्या हो रहा है? क्वेश्चंस कैसे आंसर करना है? एक सेंटेंस में या एक वर्ड में या एक फ्रेज में सेंटेंस आंसर करना है. ठीक है. 8 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? प्रोज सेक्शन से आएंगे. ठीक है. एंड 4 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? पोएट्री सेक्शन से आएंगे. तो व्हाट इज नेसेसरी? इट इज नेसेसरी दैट पोएट्री भी पढ़नी है एंड प्रोज भी पढ़ना है. सो 8 आएंगे प्रोज से और 4 आएंगे पोएट्री सेक्शन से. फॉलोइंग माय वर्ड्स. यस, कम टू द नेक्स्ट वन. समटाइम ऐसा भी हो सकता है कभी कभी मल्टीपल चॉइस आ जाए, एक मल्टीपल चॉइस आ जाए, या एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि फिल इन द ब्लैंक, एक वर्ड दिया है फिर डैश दे दिया फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया. ओके, यस, कम टू द क्वेश्चन नंबर 13.
टू 22। 13 to 22 क्या है? 4 मार्क्स के क्वेश्चन है. आंसर एनी 8 questions in paragraph of 80 to 100. What is being mentioned here? Answer any 8. कितने क्वेश्चंस आंसर करने हैं? सिर्फ 8 आंसर करने हैं. ठीक है, कितने में आंसर करना है? एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है अभी. कुछ लोग पूछते हैं कि 1.5 पेज लिखना है मैम, 1 पेज फुल लिखना है. सी क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी चाहिए. ऐसा नहीं है कि 4 मार्क्स के लिए आप 3-3, 2-2 पेज लिख रहे हो. नो नीड ऑफ. अगर ऑथेंटिसिटी है, क्वालिटी दे रहे हो, पॉइंट्स है आपके पास, एक्यूरेसी है, तो कहीं भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे. यू कैन नीटली लाइक फ्रॉम माई एंड मोर देन हाफ पेज इज इनफ. इतने सारे पॉइंट्स अगर इन्वॉल्व करके लिख रहे हो. ठीक है, क्या क्या होनी चाहिए? क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी विथ क्वालिटी. ठीक है, एंड पॉइंट्स होने चाहिए उसमें, और उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए. ठीक है, ज्यादा मिस स्पेलिंग ना करें. ओके, उसमें काट वाट भी ना लगाएं. ठीक है, और 2 पेजेस से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है 4 मार्क्स के लिए. डोंट राइट अबाउ 200. यू ऑलरेडी यू कैन सी द आंसर एनी 8 क्वेश्चंस इन अ पैराग्राफ 80 to 100 वर्ड्स. जितना उसने पूछा है उतना ही उसे देना है. फॉलोइंग, यहाँ पे क्या होगा? 7 क्वेश्चंस आएंगे प्रोज से और 3 क्वेश्चंस आएंगे पोइट्री से. तो यू कैन से दैट बोथ प्रोज एंड पोइट्री आर इंपॉर्टेंट. राइट, कम टू द नेक्स्ट. सी क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? अब एक 6 मार्क्स का है. ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा पोइट्री से, 2 क्वेश्चन आएंगे प्रोज से. ठीक है, कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है. 3 क्वेश्चन ये देंगे और आपको अटेम्प्ट करना है कितने? 1. ठीक है, तो अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स. तो क्या कह रहा है? अबाउट 4 मार्क्स के लिए हम लोग कितना लिख रहे थे? 80 to 100 वर्ड्स. अब 6 मार्क्स की बात है. 6 मार्क्स के लिए कितना पूछ रहा है? 200 वर्ड्स. 1 पेज और 1.5 पेज इज मोर देन इनफ. पॉइंट्स इतना याद रखो, क्वालिटी विथ क्वांटिटी होनी चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए. ठीक है, ओके. राइट द एक्सपेक्टेड आंसर्स इन क्वालिटी. एक्सपेक्टेड आंसर्स ही लिखना है, आप ऐसे ही बंडल नहीं मार सकते. ठीक है, फॉलोइंग. यस, क्वेश्चन नंबर 24. अब यहां से शुरू होता है ग्रामर पार्ट. ओके, पैसेज रीडिंग. पैसेज रीडिंग इतना बेहतरीन एक सवाल है. इसमें अगर इसको नीट से पढ़कर सुकून से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 10 के 10 पूरे मार्क्स आपके ही रहेंगे. कहीं भी मार्क्स कट नहीं हो सकते. एक पैराग्राफ होता है 1 पेज का, 1 या आधे पेज का. आपको नीटली पढ़ते हुए जाना है, पेंसिल हाथ में पकड़ के. इंपॉर्टेंट जहां जहां पे लगे अंडरलाइन करो, वहीं से आपको क्वेश्चंस नीचे देखने के लिए मिलेंगे. नहीं तो एक बार पहले क्वेश्चंस पढ़ लो. क्वेश्चन पढ़ो, आंसर ढूंढो, क्वेश्चंस पढ़ो, आंसर ढूंढो. इस तरह से भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, पैसेज रीडिंग 10 मार्क्स के लिए आएगा. कहीं भी मार्क्स आप लोग नहीं खो सकते. ओके, और एक इसमें वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? आप अगर नीटली पैसेज पढ़ोगे 10 मार्क्स के बदले 14 मार्क्स भी आपको मिल सकते हैं. ये और 4 मार्क्स कहाँ मिलेंगे? एंड ऑफ दिस वीडियो में आप देख सकते हो. ठीक है, तो क्या है, पैसेज एक ऐसे इसको आंसर करना है. पैसेज के जो क्वेश्चंस हैं ये सारे सब क्वेश्चंस हैं. इन सब क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? सिर्फ एक ही पेज में लिखना है. इधर आधे लिख दिए, इधर आधे लिख दिए, ऐसा हरगिज ना करें. पूरे आंसर्स क्या करें? 1 नंबर ऊपर टॉप से शुरू करके डेड एंड पे इनको खत्म कर दे. 1 लाइन के आंसर्स होते हैं. सारे क्वेश्चंस एक इधर आधे करें, उधर आधे, इस तरह से बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि होलसम में मार्क्स देते हैं वो लोग. तो इसलिए सारे आंसर्स एक ही पेज में लिखोगे, और ये बात हरगिज आप लोग नहीं भूलोगे. ठीक है, और इसमें 8 क्वेश्चंस आएंगे
पैसेज के ऊपर से, और 2 क्वेश्चंस आएंगे आपको, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, ये वर्ब्स क्या है, इसमें ग्रामर से पार्ट कौन सा भी एक क्वेश्चंस, एक या 2 क्वेश्चंस ऐसे भी आपको पूछ लेंगे, ठीक है। टेक 5 मिनट से भी ज्यादा इसके लिए आप लोग टाइम दे सकते हो, फ्रॉम माई एंड इतना टाइम इसके लिए स्पेंड कर सकते हो, ये इतना वर्थ करता है। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 25, पोएम रीडिंग, राइट। पोएम रीडिंग है, अब जिस तरह आपको पैसेज रीडिंग दिया गया था उसी तरह से पोएम रीडिंग है। एक बात इसमें क्या याद रखनी है आपको, आपकी बुक जो है स्ट्रीम्स वर्कबुक जो है, इसी में से एक पैराग्राफ छोटा सा पैसेज या पोएम आपको वहां से आएगा, और वो सारे एक बार देख कर रखो तो आपको नीटली आपको अंदाजा होगा कि इजी आपको होगा कि सॉल्व करते वक्त इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। The lines from the poem shall be chosen among the one given in the reading unit of the workbook। देखो यहाँ पे नीटली बता रहे हैं कि रीडिंग यूनिट में जो वर्कबुक में दिए गए हैं पोएम्स, उसी में से एक आएगा। वो भी कितने मार्क्स के लिए आएगा? 3 मार्क्स के लिए। इज दैट क्लियर? अगर सही से पढ़कर जा रहे हो वर्कबुक से पोएम्स तो 3 मार्क्स सिर्फ आपके हैं, किसी को पूछने की या किसी से मदद मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी है हम लोग आपको यहीं पे बता रहे हैं, आप नीटली स्टडी करके जाइए, जहाँ पे जितना प्रेशर देना है उतना ही दीजिए, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 26, राइट। क्वेश्चन नंबर 26, पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस आएंगे 3 मार्क्स के लिए, वो भी टेक्स्ट बुक से आएंगे पैसिव वॉइस। कंप्लीट द फॉलोइंग बाय फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। समझ रहे हो? यस। कम टू द क्वेश्चन नंबर 27, रिपोर्टेड स्पीच इज फॉर 5 मार्क्स। दिस विल ऑल्सो कम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक itself। yes। Question number 28, dialogue writing. Dialogue writing is easily you can understand, we'll be discussing in the class as well. That will be for 4 marks, right? That you have already learnt in the PUC first year, dialogue writing. That will be for 4 marks. Yes, come to the question number 29. These are the expressions. Expression will come from the textbook and it will contain of 2 marks, like fill in the blanks, you have to write them. Fill the blanks by choosing the appropriate expression given in the bracket. Bracket में ही expressions दिए होते हैं, सिर्फ sentence पढ़ के जो भी expressions correct proper suit हो रहा है वहाँ पे वो आपको add करना है। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 30, लिंकर्स। दैट इज फॉर 4 मार्क्स। लिंकर कितने मार्क्स के लिए आएंगे? 4 मार्क्स के लिए आएंगे, वो भी टेक्स्ट बुक के ही तरफ से आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट लिंकर्स, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 31, नोट मेकिंग। एक फ्लो चार्ट सा आपको दिया जाएगा, उसमें से ही उस फ्लो चार्ट में आपको फिलअप करते हुए जाना है, तो ये भी कितने मार्क्स के लिए आएगा? 4 मार्क्स। Yes. Come to the question number 32. 32 is of letter writing. That most probably it will be on job application. I hope you all have already studied about the job application in the lockdown itself, as earlier online classes were conducted for this job application from our respective sir. Some questions covering letter, some of them will be asking about, ma'am, we have to write this covering letter along with the resume, or how we have to write this. That is, don't get confused, you have to just write the both, complete the resume and covering information in one letter, or else you can write it separately also, fine. Covering letter separate and resume separate, or else you can combine together and you can write the whole information in one letter itself. Yes. Question number 33, speech writing or report writing. There will be a chart of a report writing that will content of 5 marks. Okay, there will be a 2 option for you people. Either you can go for a speech writing or you can go for
report writing. Okay, what information chart gives to write, that thing you have to write in the report writing. Fine. Yes. Come to the question number 34, that is a pronoun. Underlined words. Pronoun means underlined words that will come for 4 marks. There is a short paragraph from the passage given. Question number 24 shall be given, as we have already discussed the passage writing. Like that, if you understand the proper passage, then you can be easily score at least 14 marks. कहीं भी 14 मार्क्स आपके गए नहीं हैं. ठीक है, समझ में आ रही है बात. एक छोटा सा अंडर ये दिया जाएगा, जैसे लास्ट टाइम जब ऑनलाइन आपकी एग्जाम थी, एक छोटा सा पैसेज दिया गया था एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर में. एक 4 लाइन का पैसेज था और उसमें सो, ही, इफ करके ऐसे कुछ पूछा गया था. ठीक है, प्रोनाउंस का. तो वो किसको रिलेट करते हैं करके आपको लिखना है. समझ में आ रही है बात? राइट. क्वेश्चन नंबर 35, जंबल सेगमेंट से 1 मार्क्स आएगा. हैव टू पुट इन ऑर्डर. एक इधर का उधर एक वर्ड हुआ रहता है, उसको क्या करना है, करेक्ट सही से लगाना है बस. दैट विल कम फॉर 1 मार्क्स. दैट्स इट. ओनली क्वेश्चन 35 questions you will be getting. Right. There are few questions yet. Many of you will be asking what about the blueprint. Blueprint is like because the book was printed in 2019. Now it is 2020. After the lockdown, there might be a system they have changed, because every year the blueprint will be keep on changing. Then also they have given one note here. See, the blueprint that precedes the model question paper is related to model question paper number 1. ब्लूप्रिंट जो भी वो दिए हैं सिर्फ मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 के लिए ही दिए हैं, जो कि ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में मेंशन है. The question paper setters are at liberty to make changes according to their choice, adhering to design of the question paper. तो क्या बोल रहा है, उन जो इवेलुएट करते हैं या क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, उनके पास पूरी लिबर्टी होती है कि वो अपने हिसाब से ब्लूप्रिंट सेट करें. अभी तक कोई भी पीयूसी के वेबसाइट में ब्लूप्रिंट छोड़ा नहीं गया है एग्जाम के रिलेटेड. अगर ब्लूप्रिंट आता भी है तो आपको इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी. Okay, that's it for today. It was a great discussing here about the question paper. I hope you all enjoyed and understood. If you have any queries, please contact me. Thank you for the listening.